Good morning दोस्तों. So today we are entering into the Asia's cleanest village which is called Molinong. दिख रहा होगा आपको सामने. And over here entry fees is 100 rupees per vehicle. It's being considered as the cleanest village in Asia. देखते हैं कैसी दिखती है. And over here homestays are more favorite compared to hotels and resorts. Guest houses are also there. So let's see how it is. So from here cleanest village is going to start. यहाँ पे vehicles का entry नहीं है. So let's see and explore this beautiful village. तो मोलिंगनोंग में आपका स्वागत है. Cleanest village in Asia, God's own garden. यहाँ पे आप एक moving dancing stone देख सकते हैं. Then that is sky view point. Left से second. Third one is some sacred place. Fourth one is and fifth one. Both of them are bridges which you can climb. 20 rupees 30 rupees लगता है. One is sky view point का ही part है. And last one is of course single route bridge जो यहाँ से just 3 to 4 kilometers है. And ऊपर जो दिख रहा है आपको beautiful गांव with the population of around 500 to 1000 people. So don't forget to come over here. ज़्यादा दूर नहीं है शिलोंग से. It is only 2 hours drive maximum. अगर ट्रैफिक होएगा तो come over here and stay for one night. So village का entry point and सबसे पहले आपका स्वागत होता है with this beautiful bamboo bridge और नीचे से small stream is going on. Village का entry point start हो गया and you can see covered with greenery. मस्त हवा चल रही है and surrounded by all this tall trees. I don't know किसके हैं ये. One bridge you can see on the top also. So let's have a break and have this very juicy pineapple from the village. तो homestay का नाम है Ayla Jong Homestay Molinong. It is just entry point का bridge cross करने के बाद इस bridge के गेट के पास ही है. So दोस्तों एक रात के लिए हमने डिसाइड किया है we are going to stay in this homestay. She is the owner over here and this little boy. So this is going to be our room. Very simple but within the center of the village and it is 2000 rupees for a night. So homestay के just next this is the bamboo bridge which is actually 20 rupees per head. But अभी हमने ये रूम बुक करा है तो हम लोगों के लिए 40 rupees बच गया. वाओ. So villages somewhere of around 500 to 600 people and look at the mangoes. Yes, mangoes are also over there. And अभी just 50 meters ही चले हैं और ये ब्रिज आ गया है. So we are going to enjoy this. मैंने तो कल खैर बैम्बू ट्रेल किया हुआ है तो it is Bhavna who is going to have little bit of this bamboo trail. Pine tree. Now you have to move this place and then go on to the top. फिर वो हट पे जाके आपको बैठना है. Already you can see one family is enjoying. From the top also. से अराउंड हम लोग 3rd या 4th फ्लोर पे आ गए हैं मुंबई के. And from here let's see the view. Very beautiful. Homestay दिखा दिया मैंने. Again I can show this green one. So पूरा एक टर्न मार के आपको ऊपर आना है. Easy way and just you can sit in the tree house. और यहाँ से अब आपको थोड़ा और बेटर व्यू देता हूँ क्योंकि अब नाउ वी आर ऑन 5th और 6th फ्लोर ऑफ दिस विलेज. सो 360 डिग्री व्यू दे देता हूँ आपको. तो टॉप ऑफ द ट्री हाउस पहुँच गए. आराम से बैठे मजे लीजिए सराउंडिंग्स का और साथ में पाइनएप्पल रखिए which is very sweet, juicy, yummy with
lovely masala. जो आपको जस्ट ट्री हाउस के नीचे ही मिलेगा. वहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग एरिया है एंड ऑफ कोर्स पाइनएप्पल इज ऑफ $100. सो एंजॉय. मस्त मसाला डाला है और तीखा भी है. So now we are just 500 meters away from our homestay. और हर जगह पे एक्चुअली होमस्टे बनाए हुए हैं उन्होंने. और चारों तरफ आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखेंगी अलग अलग कलर्स की. एक तो भावना ने मल्टी कलर भी लिया है वीडियो विच विल पुट अप. एंड ज़्यादातर होमस्टेज फुल हैं, जल्दी मिलते नहीं हैं. बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जो पसंद आए ले लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, जैसे हमने कर लिया इमीडिएटली. सो अभी विलेज के अंदर एंट्री ले ली है. हियर पीपल आर आई थिंक सेग्रीगेटिंग गुड वर्सेस बैड सुपारी. और ये कपड़े वगैरह सुखाए हुए हैं, अपनी लकड़ियाँ बाहर डाली हुई है. यहाँ पे भी कुछ डाला हुआ है इन्होंने. आई थिंक बिटिल नाइट ही दिख रहा है. एंड आज मस्त सूरज निकला हुआ है. नाउ लेट्स गो फ्रॉम द नैरो लेन. देखते हैं क्या है दोनों तरफ. घर ही घर, ग्रीनरी, फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, हैंगिंग क्लोथ्स एंड एक सीरीन वातावरण. एकदम शांति का अनुभव हो रहा है इधर में. सो दिस इज वन ऑफ द प्रिटीएस्ट सेल्फी पॉइंट. और फैमिली, अगर फैमिली के साथ आ रहे हो यहाँ पे मस्त एक फोटोग्राफ खिंचाओ. वेरी ब्यूटीफुल. बैठ भी सकते हैं. यस. सो बिहाइंड द हट एक मस्त बड़ा ट्री है, बरगद का भाई है शायद. वेयर पीपल आर सिटिंग एंड जस्ट रिलैक्सिंग. पेड़ के पीछे भी बहुत लोग बैठे हैं और यहाँ पे बैठने की बहुत मस्त जगह है. सो थोड़ी देर के लिए हमने भी यहाँ पे अड्डा बना लिया है. दिस इज नेक्स्ट टू द कम्युनिटी सेंटर ऑफ द विलेज. सो नाउ वी आर गोइंग टू द लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मॉलीनोंग. यहाँ से कुछ 450 मीटर्स दूर है. तो जो लोग डबल रूट ब्रिज और डबल डेकर रूट ब्रिज नहीं कर सकते हैं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू सी द एग्जाम्पल ऑफ आवर एंसेस्टर्स और द विलेज पीपल, हाउ दे हैव इरेक्टेड अप दिस ब्यूटिफुल थिंग ऑन दिस अर्थ. सो इफ यू आर कमिंग टू द सिंगल रूट ब्रिज, सिंगल डेकर, steps also you have to climb down and then again climb up. So everywhere when you are in Meghalaya, steps are the part of your life. If you are tired, then always there are bamboos to help you and take a rest for a while. Yes. So finally we are over here, single decker root bridge. नेचर ने उसको ब्यूटीफुली बनाया. देखिए उसके रूट्स ध्यान से. वन एंड ऑफ द रिवर बीइंग जॉइंड टू द अदर एंड, तो लोगों को काफ़ी इजी पड़ता है. एंड जो लोग डबल डेकर नहीं कर सकते, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का ये ब्रिज दिखता है. और उस तरफ से आपको एंट्री होता है. एंट्री फीस इज 40 रुपीज पर हेड. You can have स्नान inside this river. मजा ले सकते हो. अभी काफी गर्म है, हम लोग कपड़े नहीं लाए, but at least sit and enjoy over there. So one can enjoy over here like our Lonavala and Khandala. But water का flow थोड़ा कम है because rainfall almost is 0 today. People are enjoying the summer of Meghalaya also. This is the single decker root bridge. Nature has beautifully weaved it. और नीचे से
रिवर इज फ्लोइंग। तो मैं आपको थोड़ा बहुत नज़दीक से दिखा रहा हूँ हाउ इट लुक्स लाइक। हमने डबल डेकर देखा हुआ है तो उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, बट स्टिल पीपल हु कैन नॉट डू इट, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं सिंगल रूट ब्रिज का। मस्ट बी वेरी ओल्ड ट्री और उसके रूट्स कहाँ तक पहुँचे हैं। अमेजिंग नेचर, लव यू, वाओ। Okay, so don't forget to walk on this beautiful bridge when you're coming. It's fun. So time to have some egg white, egg yellow, आज दोनों चलेगा। बहुत walk हुआ है। They are giving it on banana leaf. Yes, chili too. Thank you. So गांव में अगर आप आए हैं तो गांव का खाना खाना पड़ेगा। रोटी तो है नहीं यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द पीपल ईट राइस, दाल, आलू की सब्जी मिली, गोभी की सब्जी मिली, सम कचुम्बर, कांदा, देयर लेमन एंड मेघालय मिर्चा। सो सी द ब्यूटी नाउ। जितने भी गीले कपड़े थे यहाँ गांव में सुखाए जा रहे हैं और एक गांव की फीलिंग आ रही है। चलो, सो फाइनली गांव की गोरी ने बहुत सारे कपड़े यहाँ सुखा दिए। तो जहाँ हम लोग होम स्टे पे रह रहे हैं वहाँ पे मेनली 8 to 10 रूम्स हैं। छोटा सा एक तालाब टाइप है। जो कपड़े बरसात में गीले थे एंड सूख नहीं रहे थे, ट्राई कर रहे हैं कि आज भावना शर्मा यहाँ पे सुखा दे। सूरज साहब की मेहरबानी होगी। सो लेट मी शो यू द रूम। सो भावना हमेशा से गांव में रहना चाहती थी और ये मोलिंगोंग विलेज विच इज द एशियाज क्लीनेस्ट विलेज में उसको सौभाग्य मिला पहली बार गांव में रहने का। ऑफ कोर्स पूरी तरह से इसको हम लोग गांव नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, ऑफ कोर्स इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, बट लाइट भी 10 बजे तक रहेगी और 10 से मॉर्निंग 6 o'clock इट वोंट बी देयर। See the washroom, good quality, एकदम क्लीन चकाचक है एंड बेसिक जो भी चाहिए अपने को everything is available. So now we are going to the मोलिंगोंग स्काई व्यू पॉइंट। इस छोटी सी पगडंडी से जाते हैं। लेट्स सी वेयर इट गोस। तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है and from here I think you can see the Bangladesh and also some marshy areas. ऊपर जाएंगे तो दिखेगा। कटहल का पेड़ है, उसके ऊपर ये पूरा ब्रिज बना हुआ है। So finally target is achieved. Bamboo trail is done by भावना। Small bamboo trail जो वो कल नहीं कर पाई थी, आज फाइनली कंप्लीट किया है। So let me show you now the whole मोलिंगोंग also. ये पूरा का पूरा जो 360 डिग्री आप देखेंगे, दिस इज मोलिंगोंग विलेज। ऑफ कोर्स ग्रीन ट्रीज के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा, बट थोड़े बहुत आपको घर नज़र आएंगे इधर पे। तो मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर कवर्ड विथ ग्रीन meadow only. So this is what I was telling Piyush, कि some part of the forest they are cutting off, but they have to have some trees around, and this village is real example of that. So secondly जो आपको आगे दिख रहा है मडी एरिया, that is all flooded है। वहाँ पे बहुत सारे घर थे, but because of that cyclone Ramel यहाँ पे उसका इम्पैक्ट भी आया है। और मडी एरिया के उस तरफ इस बांग्लादेश, और इस तरफ अगर मैं जाऊँगा जो हेजी पार्ट है, देयर वी कैन नॉट सी राइट नाउ, बट देयर इज़ अ डाउकी रिवर जो आगे बांग्लादेश में
उसका नाम अलग है, Tamil. तामिल, यहाँ पे उसको डाउकी बोलते हैं. सो दिस इज हाउ द व्यू इज फ्रॉम द टॉप. So let us take 360 degree of the whole village. Golden hour चालू है. So let's see now. मस्त है. So good. Okay, good to see Pani Puri over here. What is it called? Pani Puri over here? पूरी दाल पूरी आलू पूरी सब पूरी Puchka. What do you call it in Khasi? Puchka. Okay, beautiful. So ये अराउंड 6 बजे का नज़ारा. पूरा रास्ता मस्त खुला. प्लेजेंट हो गया वेदर इन दिस विलेज. सो मैनी पीपल आर स्टेइंग ओवर हियर. अभी सब रूम के अंदर हैं. 8 साढ़े 8 बजे बोल रहे हैं डिनर सब खुलता है इधर. एंड सो मैनी ऑफ देम डू नॉट सर्व डिनर ऑल्सो. सो 2 से 3 ही रेस्टोरेंट्स हैं नियर ओल्ड पार्किंग वेयर दे सर्व. सो जस्ट चिल कर रहे हैं यहीं पे. Loving it. सुप्रभात दोस्तों, फ्रॉम द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया. एंड ऑफ कोर्स इंडिया में भी इसको अवार्ड मिला था इन 2006, मॉलीनोंग. सो यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं टू बांग्लादेश बॉर्डर, दैट इज डाउकी. एंड अभी यहाँ पे सुबह के बजे हैं अराउंड 7 o'clock. सो दिस विलेज इज़ द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल हाउ टू प्रमोट टूरिज्म. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल यहाँ पे बन चुका है. एज यू कैन सी दिस ब्रिज, दे चार्ज यू 20 rupees पर पर्सन एंड इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ आइलाजोंग होम स्टे. बात की मैंने उनसे. अराउंड 500 पीपल इवन इन ऑफ सीजन कम्स ओवर हियर. सो आप 500 into 20 कर दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी easily 10,000 rupees. और अगर 5,000 rupees भी डे का आता है, इट्स अ बिग अमाउंट. देन यू कम टू दिस शॉप. एंट्री पॉइंट से जस्ट 5 मिनट दूर है. एंड यहाँ पे पाइनएप्पल बेचने वाला अपना पाइनएप्पल बेचता है जो दिन का अराउंड 150 to 200 इन समर सीजन. और दूसरे सीजन में दूसरे फ्रूट्स, मैंगो इज देयर, लीची इज देयर, और वट एवर इज बींग देयर इज सेलिंग. सो दैट इज ऑल्सो अगेन अ बिग मॉडल. देन आई टेक यू टू द थर्ड एग्जाम्पल. थर्ड एग्जाम्पल इस साइड पे है, दैट इज कॉल्ड स्काई व्यू, जो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं. दैट इज द प्लेस वेयर ही चार्जेस 30 rupees एंड ही वॉज टेलिंग मी इन सीजन ही अर्न्स अराउंड 20,000 rupees पर डे. दैट इज अ बिग अमाउंट. मतलब 800 से 1000 लोग रोज चढ़ रहे हैं. मिनिमम 20,000 रुपया कमाता है. और नॉर्मल डेज पे 5,000 to 10,000 इज वेरी इजी फॉर हिम. एंड इन दैट वे देर आर सो मेनी टी स्टॉल्स, पुचका, पानीपुरी. Then there are other small shops of cold drinks, small restaurants, and the best thing or the big thing is homestay. हर जगह पे homestay हैं. 1 room, 2 room, 3 room. जैसे जैसे वो grow हो रहे हैं, number of rooms also they are erecting up. जैसे हमारा आप देखिए, वो बोल रहे हैं अराउंड 2 साल में ऊपर भी एक और फ्लोर आ जाएगा. So 3 more rooms are going to come. So that is the beauty of this development. And every village or every town has to learn from here in India, and India is then going to do wonders. So one important tip before I forget, Sunday most of the places are being closed in Mollycong as 70 to 80% people over here are Christians. So वहाँ पे church में services देने के लिए they have to go. So please remember that if you are traveling to Mollycong, avoid Sunday. तो ये आलम है सुबह 7 बजे. नॉट अ सिंगल शॉप इज ओपन, क्योंकि होम स्टे में हमको चाय कॉफ़ी कुछ नहीं दे रहे हैं. तो चाय के लिए निकला हूँ, बट नॉट अ सिंगल स्टॉल इज ओपन. सो ये है यहाँ की ब्यूटी. लोग ऑलरेडी खुश हैं वट एवर दे आर अर्निंग. ऑफ कोर्स एज आई हैव टोल्ड यू द बिजनेस मॉडल, दे आर डूइंग वंडर्स ओवर हियर. तो अब चाय के लिए कोई और जगह ढूंढेंगे या फिर
विल आस्क फॉर हॉट वाटर अपने होम स्टे ओनर से। ये खूबसूरत नज़ारा, फुटबॉल ग्राउंड, एस पीपल ऑफ मेघालय लव सॉकर। पीछे आपको चर्च दिख रहा है एंड यहाँ से आपका एग्जिट और एंट्री पॉइंट स्टार्ट होता है। बैकग्राउंड में हमारा होम स्टे जस्ट एंट्री पे ही है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल लीव द कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो। एंड ये साइड आपके ट्रीज ही ट्रीज और अंदर की साइड पूरा का पूरा गांव बसा है। सो मॉलिंगनोंग के रास्ते में देयर इज़ वन बैलेंसिंग रॉक जो मैंने आपको फोटो में दिखाया था। एंट्री फीस ₹10 पर हेड, 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। 1 मिनट भी नहीं है, ओके दिख रहा है भावना को शायद। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग रॉक। एज यू ऑल कैन सी सच अ बिग स्टोन is being balanced by this small stone. ये देखिए, beautiful and काफ़ी बड़ा है, around 20 feet होएगा ऐसे, heavy भी लग रहा है। Surroundings everywhere are so calming and serene कि कहीं पे भी आओ तो ऐसा लगता है आहा जन्नत मिल गई अपने को। इधर ही रुक जाओ। हाँ, वो भावना का फेमस डायलॉग है, यहीं रुक जाओ। So this is the other side of the rock. एंड चारों तरफ बैम्बू ट्रीज। Good morning, gingers and chilies. So it's time to say goodbye to Mollingnong, and with the nice chai at the homestay and lovely night we spent here. बहुत ही सुंदर स्टे था. One must experience this. No electricity after 11 o'clock in the night. Till morning, till next day 7 o'clock in the evening. No internet, so it's wonderful experience. एक तो experience होना ही चाहिए. Take care of your parents. Hakuna Matata.